Students, in the previous class, I told you about the chapter of geography, our changing earth. But today we will study the third chapter of the history, the Delhi Sultans. In this chapter, we will read after the 11th century, okay, and the early 12th century, who became the king of Delhi. And in the previous chapter in history, I told you about the battle of Tarain. As you know that the first battle of Tarain held in the year of 1191, and in this battle, Prithviraj Chauhan won. And next year, in the year of 1192, Muhammad Ghori again attacked on India, and second battle of Tarain, and in this battle Muhammad Ghori won and established a new rule in our country. And in the previous chapter we have also read about the Gurjar Pratihar, Rashtrakoot and Pal dynasties, and they were struggled each other to control over Kannauj. And we have also read in the previous chapter about the Chol dynasties, and what was the Chol administration in the southern part of the country, and what measure to be taken by the Rajendra first in the Chol dynasty, and he was the great ruler of the Chol dynasty, okay, and what administrative reforms to be conducted by the Chols in the southern part of the India. But in this chapter we will read about the Delhi Sultans and who became the Delhi Sultan in the early of the 13th century. Okay, in chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. In this chapter we will know about the importance of the Delhi, because today's Delhi is capital of our country, and in the 12th century how Delhi became the important for the rulers. Okay, and take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, and who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahmans of Ajmer. It was under the Tomars and the Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here called Delhi Wall had a wide circulation. Table 1.1. क्योंकि हम दिल्ली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली जो है वो आज भी हमारे देश की राजधानी है, तो 12वीं शताब्दी के दौरान जो है दिल्ली वो सभी शासकों के लिए, जो भारत में अलग अलग जो है रियासतों पर जो शासन करने वाले जो राजा थे, उनके लिए दिल्ली कैसे महत्वपूर्ण जो है सिद्ध हुआ। तो दिल्ली जो है सबसे पहले तोमर जो राजपूत थे, तोमर राजपूतों के अंदर में राजधानी बनी थी, और जिनको 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहानों के द्वारा हराया गया था। अजमेर पर जो शासन करने वाले जो शासक थे चौहान्स, उनको चहमान्स भी कहा जाता था। तो तोमर और जो चौहान थे उन्होंने दिल्ली को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कॉमर्शियल सेंटर बनाया, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे जो अमीर जो जैन व्यापारी होते थे वो शहर में रहते थे। उन्होंने कई अनेक जो है मंदिर बनवाए थे, वहाँ पर जो सिक्के हैं वो ढाले जाते थे, तो उनको दिल्ली वॉल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिल्ली वॉल कहा जाता था। और उनका जो है काफ़ी
जो है सर्कुलेशन भी होता था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वेस्ट एरियाज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table first again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. तो दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैपिटल से, है ना, तो उस पर जो नियंत्रण स्थापित किया गया सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो दिल्ली सल्तनत से हुई। जब दिल्ली के अंदर एक नई सल्तनत की शुरुआत हुई, जैसा मैंने पिछले सेक्शन में और पिछले अध्याय में भी आपको बताया था कि सबसे पहले, क्योंकि 12वीं शताब्दी के मध्य में जो है जब तोमर राजपूतों ने वहाँ पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद 1166 में जो है पृथ्वीराज चौहान ने पहला आक्रमण किया था दिल्ली पर और तोमरों को हरा करके दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1191-92 तक जो है पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा रखा था। लेकिन उस दौरान कई ऐसे जो इन्वेडर्स थे जो बाहर से आए और उन्होंने भारत की सरजमी पर आक्रमण किया, तो उनमें जो है मोहम्मद गौरी का नाम आता है, जिसके बारे में हम पिछले अध्याय में भी अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनी जो था उसने आक्रमण किया था। उसने करीब 17 बार भारत पर आक्रमण किया और उसका जो उद्देश्य था वो सत्ता प्राप्त करना या भारत में शासन करना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था लूटना। तो वो जब भी भारत पर उसने आक्रमण किया केवल लूट मार के उद्देश्य से किया, और उसने मंदिरों को निशाना बनाया और जितने भी जो कॉमर्शियल सेंटर होते थे उनको निशाना बनाता था और लूटपाट करता था और वापस चला जाता था। तो उसने करीब 997 से लेकर के 1025 तक जो है करीब 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। तो ये बात है जो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा 12वीं सदी के मध्य में जब तोमर राजपूत ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया, क्योंकि दिल्ली एक कॉमर्शियल सेंटर बन चुका था, एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक केंद्र था, वहाँ पर काफ़ी जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी। जो जैन व्यापारी होते थे वो जो है व्यापार में जो है लगे हुए थे, और उनका जो उन्होंने कई प्रकार के जो है मंदिर भी वहाँ पर बनवाए थे, सिक्के भी ढलवाए गए थे, ठीक है ना। तो इनका काफ़ी जो है एक अच्छा सर्कुलेशन वहाँ पर था दिल्ली के अंदर। लेकिन 12वीं शताब्दी के अगर आप मध्य के बाद की जो घटनाएं देखें तो उसमें काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन हुए, क्योंकि तोमर राजपूतों की जो सत्ता थी वो चौहानों ने छीन ली 1166 में, और उसके बाद चौहानों का जो है वहाँ पर शासन रहा, क्योंकि उससे पहले अजमेर में चौहान शासन करते थे और उनका जो शासन था उनमें सबसे जो फेमस जो शासक हुए पृथ्वीराज तृतीय के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान भी उनको कहते हैं। तो उन्होंने 1192 तक दिल्ली पर शासन किया था। 1191 में सबसे पहले उनका युद्ध मोहम्मद गौरी से हुआ। मोहम्मद गौरी का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में सबसे पहले आक्रमण किया था गुजरात में, वो असफल रहा। 1178 में फिर उसने दूसरा आक्रमण किया और गुजरात के पाटन में जो उसका दूसरा आक्रमण था, और उस आक्रमण में भी गुजरात का जो शासक था भीम द्वितीय उसने उसको हराया था, पराजित किया था। लेकिन वो शांत नहीं बैठा था, क्योंकि उसका उद्देश्य था भारत में सत्ता प्राप्त करना, उसका उद्देश्य लूट मार करना नहीं था। क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत की अगर आप देखें उत्तर पश्चिमी सीमा से प्रवेश करता था, और उत्तर पश्चिमी सीमा जो है वो सुरक्षित नहीं थी भारत की। तो उस सीमा से अफ़गानिस्तान जिसको आज हम कहते हैं, उस रास्ते से जो है ईरान से जो है कई ईरान से और अफ़गानी जो है आकर के आक्रमण करते थे और भारत पर वो कब्जा करना चाहते थे। क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर हम देखें, जैसे हमने पिछले अध्याय में चोल्स के बारे में पढ़ा, तो चोलों का जो शासन था वो दक्षिण में था, भारत के दक्षिणी हिस्से में। तो उत्तरी जो भाग था भारत का, उत्तरी भाग की अगर उत्तर पश्चिमी जो सीमा रही वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें विदेशी आक्रमणों के कारण हमेशा वो असुरक्षित बनी रही थी। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि मोहम्मद गौरी जो था वो 2 बार आक्रमण में असफल रहा, लेकिन उसने हार नहीं माने। तो उसने फिर 1191 में दिल्ली पर जो है फिर आक्रमण किया, और दिल्ली से आगे तराइन के मैदान में उसका मुकाबला हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ।
तो पृथ्वीराज चौहान उस समय एक काफ़ी शक्तिशाली शासक थे, दिल्ली पर उनका शासन होता था और दिल्ली से वही शासन चलाते थे। लेकिन जो है उनकी जो सेना थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी। तो जब उनका मुकाबला हुआ मोहम्मद गौरी से, तो पहले मुकाबले में 1191 में जो हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसको पराजित किया और उसे युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठा, तो उसने फिर अगले वर्ष 1192 में जो है फिर दोबारा से जो है आक्रमण किया और उसने अपनी फौज को संगठित किया पिछले 1 साल के दौरान, और संगठित करके कुछ भारतीय जो शासक थे, जो गद्दार हम जिनको कह सकते हैं, उनमें सबसे जो गद्दार था उसका नाम था जयचंद, है ना। जयचंद जो कन्नौज का शासक था, उसका जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ मतभेद रहा था। तो उस मतभेद के कारण जो है जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और जयचंद की सेना हो गई, मोहम्मद गौरी की सेना हो गई। तो जब उसकी सेना काफ़ी विशाल जब हो गई तो फिर उन्होंने मिलकर के जो है पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था 1192 में। और इस तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ और उसके बाद जो है भारत में एक मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। तो 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उनको बंदी बना लिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो 1192 से लेकर के फिर उसने मोहम्मद गौरी ने अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया। तो जिसने उसका साथ दिया था उसके अगर आप पढ़ें जयचंद के बारे में, तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान का तो साथ उसने नहीं दिया था, तो वो गद्दार था, ठीक है ना। तो फिर 1194 में फिर उसका युद्ध जो है मोहम्मद गौरी का वो जयचंद के साथ हुआ, क्योंकि जो है जो विदेशी आक्रमणकारी जितने भी थे उनका किसी से कोई लगाव नहीं था भारतीय से, है ना। लेकिन भारतीय जो है केवल अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उनका समर्थन करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। और उसका परिणाम क्या हुआ कि भारत में एक मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी पराजित किया और जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। तो 1194 के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो 1194 से लेकर के 1206 जब आप पढ़ेंगे तो उस दौरान जो है मोहम्मद गौरी जो है उसका जो एक सिपह सालार था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक सिपह सालार था, तो वो उसकी काफ़ी सेवा करता था, तो उससे वो काफ़ी खुश भी रहा। तो 1200 के आसपास जो है वो उसकी अपनी सत्ता सौंप करके जो है वापस अपने अफगान चला गया था। तो दैट दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली, कोहना, सीरी एंड जहाँपना। तो ये अलग अलग जो हैं मैप 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग जो है वो जगहों के नाम रखे गए हैं। एक दिल्ली कोना कहा जाता था और सीरी, जहाँपना, अलग अलग उन्होंने उस समय नाम इसके रखे थे। तुगलकाबाद, आदिलाबाद, कुतुब मीनार, है ना, हौज सुल्तानी, ये अलग अलग नाम हैं। तो इनके बारे में और आगे भी हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो दिल्ली पर जिन्होंने शासन किया या जो हम दिल्ली सल्तनत जिसको कहते हैं, दिल्ली सल्तनत जिसको कहा जाता है, और उस दौरान कौन कौन शासक हुए जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो जैसे मैंने कहा पहले राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। राजपूतों में तोमर हुए और इन्होंने अर्ली 12th सेंचुरी, है ना, यानी कि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के 1165 तक जो है दिल्ली पर शासन किया था। और इनमें जो सबसे फेमस जो शासक हुए उनका नाम था अनंगपाल। तो अनंगपाल जो तोमर थे उन्होंने 1130 से लेकर के 1145 तक दिल्ली पर शासन किया था। उसके बाद चौहान आए, तो उन्होंने जैसे मैंने कहा 1165 के बाद 1166 में जो है पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण रहा। लेकिन इसमें जो दर्शाया गया है वो 1175 से 1192 का काल दर्शाया गया है। तो उस दौरान जो है उन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। 1192 के बाद जैसे मैंने बताया कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद अर्ली जो टर्किश रूलर हुए, जो तुर्की जो शासक हुए 1206 से 1290 तक, उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, और शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन, ये सभी जो है शासक हुए और इसको गुलाम वंश कहा जाता था, है ना, स्लेव डायनेस्टी।
तो जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी में जो फर्स्ट रूलर हुए और जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, उनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है ना। तो मोहम्मद गौरी तो उसको दिल्ली की सत्ता सौंप करके वापस चला गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने उसकी सत्ता को आगे जो है बढ़ाया और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और 1206 से लेकर के 1210 तक वो दिल्ली की सल्तनत पर काबिज रहा। उसके बाद उसका जो दामाद था जिसका नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, है ना। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो 1210 में शासक बना और उसने 1236 तक जो है दिल्ली पर जो है शासन चलाया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो पुत्री थी उसका नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है वो 1236 से लेकर के 1240 तक जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। और उसके बाद जो है अगर हम देखें फिर गियासुद्दीन बलबन का नाम आता है, क्योंकि 1240 से लेकर के 1266 के बीच में काफ़ी जो है एक अनस्टेबल, जैसे हम कहें ना, एक अनस्टेबल स्थिति रही दिल्ली के अंदर। एक साल के लिए एक नासिरुद्दीन मोहम्मद को बैठा दिया गया तो उन्होंने ज़्यादा समय तक एक अच्छा से शासन नहीं कर पाया, तो अमीर जो लोग थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। काफ़ी जो उथल पुथल का ये समय रहा। उसके बाद जो एक सबसे प्रमुख जो लीडर हुआ गुलाम वंश में, उसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। ये काफ़ी चतुर और जो है शक्तिशाली शासक हुआ और इसने 1266 से लेकर 1287 तक जो है इस शासन को आगे बढ़ाया। उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी। तो जब खिलजी डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ते हैं तो इन्होंने 1290 से लेकर के 1320 तक जो है दिल्ली की सल्तनत पर जो है कब्जा बरकरार रखा और अपने शासन को काफ़ी विस्तार भी दिया। तो इनमें सबसे पहले जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने 1290 में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से लेकर के 1296 तक जो है दिल्ली पर शासन किया। जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत के काल में जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। उसने अपने शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार किया, उसने राजस्थान से लेकर के गुजरात, मालवा और दक्षिण के काफ़ी क्षेत्रों तक जो है अपना विस्तार किया था। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आया और तुगलकों ने जो है 1320 में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया और इनका सबसे पहला जो शासक हुआ उसका नाम गियासुद्दीन तुगलक था, जो 1320 से 1324 तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहा। और उसका जो पुत्र था मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक रहा और उसका जो पुत्र था फिरोज शाह तुगलक वो 1351 से 1388 तक उसने दिल्ली पर कब्जा रखा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो सभी शासक हुए अलग अलग वंशों के, अलग अलग जो राजवंश इनके हुए, उन्होंने दिल्ली पर जो है छल से कपट से, है ना, कई तरीकों से जो है दिल्ली की सत्ता प्राप्त की और अपना शासन रखा। काफ़ी जो है प्रशासनिक सुधार भी किए और दिल्ली से ही लगभग ज़्यादातर नॉर्थ का जो हिस्सा था भारत का, उत्तर भारत का जो हिस्सा था, मध्य भारत का जो हिस्सा था और अगर हम देखें जो पश्चिमी भारत तक जो है लगभग ये अपना आधिपत्य जो है बना करके रखे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी हुआ, सैयद वंश हुआ और इसने 1414 से लेकर के 1451 तक जो है शासन किया था। इसका सबसे प्रमुख जो शासक हुआ वो खिज़्र खान था, ठीक है ना, जिसने 1414 से लेकर के 1421 तक जो है दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद एक और फेमस वंश हुआ जिसको हम कहते हैं लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से लेकर के 1526 तक शासन किया था और इसकी स्थापना जो की थी वो बहलोल लोधी ने की थी, है ना। बहलोल लोधी जो था उसने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की, 1489 तक ये शासक रहा और बहलोल लोधी का जो पुत्र था उसका नाम था सिकंदर लोधी, है ना। तो सिकंदर लोधी फिर शासक बना और सिकंदर लोधी के बाद अगर हम देखें तो इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी 1526 तक शासक रहा। 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोधी को बाबर ने पराजित किया था और भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। क्योंकि बाबर जो था वो फरगना का जो शासक था उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था बाबर
और बाबर ने भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमा से प्रवेश किया और दिल्ली की ओर वो आगे बढ़ा। ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि बाबर की जो मदद की थी उस समय जो है मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा ने उनकी मदद की थी, क्योंकि वो दिल्ली पर इब्राहिम लोदी जो थे वो एक अफ़गान शासक थे और उसको वहाँ से वो हटाना चाहते थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था वो एक कुशल शासक नहीं था। तो दिल्ली पर एक तरीके से जो है सुरक्षा का जो एक वातावरण था उसको दूर करने के लिए जो है राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया था, और वो ये जानते थे कि अगर हम बाबर को पराजित भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में हम जो है मुग़ल डायनेस्टी में इसके बारे में और अध्ययन करेंगे कि क्या क्या उस समय घटित हुआ था। तो कहने का अर्थ यह है, जितने भी ये वंश हुए दिल्ली सल्तनत में, तो चाहे राजपूत डायनेस्टीज हुई, उनका कुछ एक छोटे समय के लिए शासन रहा, लेकिन जो सल्तनत पीरियड रहा जो मुस्लिम देश के अंदर आए, और उन्होंने अगर हम देखें 13वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर के और 16वीं शताब्दी के शुरुआत तक करीब 1526 तक जो है दिल्ली पर शासन किया था। तो दिल्ली जो है वो एक सबसे एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था, सत्ता का एक केंद्र बना, है ना, पावर सेंटर। जैसे आज के दौर में भी अगर देखें तो दिल्ली क्या है, वो हमारे देश का एक पावर सेंटर है, एक सत्ता का केंद्र है। तो तभी से जो है दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था, और उसका परिणाम हम अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि सुल्तानों की बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत के बाद जो है मुग़ल डायनेस्टी हुआ, तो मुग़लों के बाद जो है देश में अंग्रेज़ आए, तो सबसे पहले अगर हम देखें अंग्रेज़ों की भी सत्ता रही। तो दिल्ली का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है भारतीय इतिहास में। उसके बारे में हम आगे भी अध्ययन करेंगे, और हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान। ओके।